Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my viewers. If you are a new one in this channel, so please subscribe for watching the more such like videos. Let's start and watch carefully till end of this video. In a previous lecture, we have discussed about the types of the curriculum. This is also the remaining second part of the previous video. Now, first of all, we shall discuss about the subject-centered curriculum. This is the traditional curriculum approach that focuses on a particular subject matter or the discipline rather than on the individual approach. It is the traditional model which is proposed by the Ralph Taylor in 1949. It focuses on the content and the knowledge. So it is also called the knowledge-centered curriculum. It is an academic curriculum and focus on the mastery of the learning. In it, the content is organized in a sequence, systematic way, in a smaller unit and from simple to the complex. Actually, जो subject-centered curriculum है, this curriculum revolves around the subject matter, content, knowledge. इसमें जो बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि ताकि जो है वो नॉलेज एक स्टैंडर्ड बेस्ड नॉलेज जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जा सके, जो लाजमी मलजूम है और उसका सीक्वेंस है, जो एक उस नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम तर जो बेसिक नॉलेज है वो तमाम एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ बच्चों को वो प्रोवाइड किया जा सके. So in this regard, the basic role of the teacher is share the knowledge in a traditional way in which the discipline is very important. It mainly focus on the intellectual development through the continuous practice or the drill in a specific skills and the standard knowledge chosen by the experts. The next is about the learner-centered curriculum. This is proposed by the John Dewey. This revolves around the learner needs, interest and the demands of the students. The assumption about this curriculum is that the students have the different nature. So it is concerned that the individual learning is very important. So it is very difficult to follow the same curriculum at everywhere in the world. The learner is an active participant and in this regard they bring their knowledge, culture and the context is very important. In this way the confidence, creative thinking, critical thinking and ownership and the responsibility create in the students. जो हमारा लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, एक्चुअली ये तमाम का तमाम जो है वो लर्नर के इर्द गिर्द घूमता है, जो लर्नर की नीड्स, ज़रूरियात उसको देखते हुए, जैसे कि हमने पहले ये बिल्कुल उसकी वाइस वर्सा है. जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है वो तमाम तर चीज़ें जो सब्जेक्ट को देखते हुए, ठीक है, वो नॉलेज और कंटेंट को देखते हैं, उसकी तरतीब को देखते हैं, उसके सीक्वेंस को, जो उसकी अहमियत को, ठीक है, और उन चीज़ों को देखा जाता है. इसमें वो तमाम चीज़ें इसके बिल्कुल उल्ट हैं. उसमें इन चीज़ों को नहीं देखा जाता बल्कि स्टूडेंट्स उसको तय करते हैं या स्टूडेंट्स को देखते हुए इसको अडॉप्ट किया जाता है कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कल्चरल, उसका जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस नेचर के हैं. और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो बच्चे जो होते हैं वो हर जगह एक जैसे नहीं नेचर के पाए जाते हैं, उनके डिफरेंट नेचर्स हैं. तो हाउ कैन वी मेक अ सेम करिकुलम फॉर एवरीवन. हर एक के लिए करिकुलम एक जैसा नहीं हो सकता. अगर हम एक मिसाल है कि एक छोटे बच्चे को के साथ एक बड़े बच्चे को दौड़ में लगवाएं तो हाउ कैन पॉसिबल कि वो एक छोटा बच्चा जो है वो दौड़ में जीत जाए. इसी तरह अगर हम एक छोटे बच्चे से कहते हैं कि भारी चीज़ उठाएं जबकि वो उससे उठाई ना जा सकती हो तो वो कंपेयर नहीं बनता. तो इसी तरह एक नेचर है कि एक फिनोमिना है कि इंसान जो है वो डिफरेंट नेचर रखता है. तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं. जब तक हम इसको मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो हमारा करिकुलम जो है वो सही तरीके से उसके समरात हम हासिल नहीं कर पाएंगे. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, उसकी साइकी को, उनकी नीड्स को, ज़रूरियात ज़िंदगी जो उनकी हैं, जो उसका नेचर है, वो उसकी नेचर के मुताबिक जो है हम करिकुलम को बनाएं. द नेक्स्ट इज़ अबाउट द टीचर सेंटर्ड करिकुलम. This type of the curriculum revolves around the teacher. Teacher is all in all and has the active role where the students remain the passive.
it is assumption that the teacher is an authority, experts and the skillful, and he can manage the things in a better way. Direct teaching is the primary teaching strategy, and instruction occurs frequently with the class. तो इसमें जो हमारा ये जो करिकुलम है टीचर सेंटर्ड करिकुलम, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये टीचर ही उसको सारा इन्हिसार जो है वो टीचर के ऊपर होता है। अब इसका भी एक ये अजम्पशन है इसके बारे में कि टीचर जो है ज़ाहिर बात है वो अथॉरिटी है, एक्सपर्ट है, और वो बच्चों से ज़्यादा ओपिनियन और वो ज़्यादा जो है वो उसके एक्सपोजर ज़्यादा होता है और उसके पास तजुर्बा और एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो बच्चों के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते इस करिकुलम में। तो वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो टीचर बनाता है, यानी कि जो टीचर मौजूद है उसको बेहतर पता है कि हम अपने बच्चों के लिए किस तरह क्या काम करवा सकते हैं। टीचर को बेहतर पता है, जबकि हमारे देखेंगे जो हमने पीछे वाले जो पढ़े हैं सब्जेक्ट सेंटर में सिर्फ सब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ठीक है, कंटेंट को देखा जा रहा है, हायरार्की ऑफ द नॉलेज को देखा जा रहा है, इसमें उसमें मास्टरी ऑफ द लर्निंग को देखा जा रहा है, जबकि हमने आगे उसके बाद लर्नर सेंटर्ड को देखा। लर्नर सेंटर में जो बेसिकली पर्पस जो था वो बच्चों की नीड्स और उसकी ज़रूरियात को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, ठीक है, उसके साइकी को देखते हुए हमने ये तमाम जो करिकुलम डेवलप करना है, ठीक है, और बच्चों में ताकि क्रिएटिविटी पैदा हो, लर्निंग स्किल्स आएँ, उसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अहलियत आ सके बच्चों में, ये इसलिए बनाया जा रहा होता है। और जबकि ये जो टीचर सेंटर्ड करिकुलम है वो इसलिए बनाया जाता है कि देखें कि टीचर जो है वो एक अथॉरिटी है, और टीचर जो है वो बेसिकली एक्सपर्ट होता है, और टीचर जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा रखता है बच्चों से, वो अपने बच्चों के लिए वो बेहतर तरतीब दे सकता है कि मैंने बच्चों को अब क्या देना है, क्या पढ़ाना है, कितनी डोज देनी है, ठीक है। वो तमाम तर मामला जो हैं वो एक टीचर वो तय करता है कि जो हम बच्चों के लिए जो है वो क्लास में क्या करवा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द कोर करिकुलम। दिस टाइप ऑफ द करिकुलम इज़ अ सेट ऑफ द कॉमन कोर्सेज and the general education for all. It is very important for the learner to adjust effectively in the society. Actually जो कोर जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में, तो ये एक्चुअली है, इसका मकसद ये है कि तमाम लोग जो हैं वो उसको पढ़ें, ये सबके लिए है, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि ये साइंस का है, आर्ट्स का है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम लोगों के लिए यकसां हैं, बराबर हैं, ठीक है, और होनी चाहिए। तो हर माशरा ये चाहता है कि अपने जो बेसिकली जो चीज़ें कोर हैं वो तमाम लोगों को वो उसकी मालूमात पहुंचनी चाहिए, उसका इदराक होना चाहिए। तो वो कोर करिकुलम जो है इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दिस रिगार्ड कि हम मिसाल के तौर पर मैं ये हमारे यहाँ जो कि इस्लामिक कंट्री है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बेसिक पर्पस जो है मुसलमान अच्छा बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जी सबसे पहले जैसा कि अब अल कुरान वो सबके लिए लाजमी करार दिया गया है, ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे इस्लामियात के अलावा भी मतलब बहुत सारे जो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं या लाजमी मवाद है, ठीक है, जो कि देना लाजमी अज़हर ज़रूरी है, सबके लिए है, ठीक है, इंग्लिश है, मैथ्स हैं, इस तरह और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो एक बिल्कुल अलग होते हैं, और एक जो है वो एक ऐसे हैं जो नॉलेज है, एक कंटेंट है जो सबके लिए ही यकसा तौर पर बराबर ज़रूरी है। तो वहाँ कोर करिकुलम का सहारा लेना ज़रूरी है। तो कोर करिकुलम जो है हमें बेसिकली जनरल चीज़ें सबके लिए जो है वो देते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक नहीं है, जो अज़हद ज़रूरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर ऑल। द नेक्स्ट is about the integrated curriculum. Integrated means combined together, so it is the combination of the different subject areas in one area. In this, students broadly explore the knowledge in a various subjects. It views the learning in a holistic way, and it reflects the real world life. This type of the curriculum is more common in the early childhood and the primary schooling. So ये जो करिकुलम है, इंटीग्रेटेड करिकुलम है, ये इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं, उसको कंबाइन करके इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है। इसके बहुत सारे मकासद हैं। सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि जिसमें जो बच्चे हैं, जो हमारे जो ख़ास तौर पर छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही अहम है कि बच्चों से बोझ उठाना किताबों का अलग अलग, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक ही किताब में छोटा सा मुख्तसर सा करके वो इंटीग्रेट करके बना दिए जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। अच्छा, इसमें लेकिन बनाने का भी एक जो तरीक़ाकार है इसमें कि वो एसोसिएशन किस तरह करना है सब्जेक्ट्स को, किसके साथ जो है वो मिलाना है, तमाम सब्जेक्ट्स को किस तरीके साथ जो है वो तदरीज जो है वो जो है उनको बनाना है। ठीक है, तो इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो नॉलेज जो है वो किस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नॉलेज को जो है जो इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो बेसिकली पर्पस तो ये है कि क्योंकि हमारी एक होलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी अगर देखें तो हम ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट या एक ही चीज़ को हम नहीं बल्कि सीख रहे होते हैं। ज़िंदगी के अंदर भी तमाम चीज़ें साथ चल रही होती हैं। ज़िंदगी में हम हिसाब किताब भी कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से गुफ्तगू शुनीद भी कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए हम जो है ज़िंदगी के दूसरे पहलू को भी देख रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस भी हम कर रहे होते हैं। तो सो आवर लाइफ इज़ आल्सो इंटीग्रेटेड ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड कि बच्चा जो है वो अपने एक डायमेंशनली उसमें चीज़ें आएँ और वो अपनी लाइफ में जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर स्टेगनेंट ना हो। द नेक्स्ट वन is about the broad field curriculum. This type of the curriculum is the combination of the related subjects into one broad field. The basic purpose of this to highlight the relationship between the subjects in a depth. Sometimes this curriculum is also called the holistic curriculum, and it is a interdisciplinary system in which the content that appears and effects to fit together logically. For example, we can say that in a social studies, it is the combination of the different topics and different interrelated subjects such as geography, political science, history, sociology, etc. तो ये जो ब्रॉड फील्ड जो करिकुलम है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक बड़ी फील्ड में इकट्ठा कर देना, ठीक है। अच्छा, जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है और इसमें जो फ़र्क है, इंटीग्रेटेड करिकुलम में हम डिफरेंट एरियाज़ ऑफ सब्जेक्ट को लेते हैं, इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लिया जाता है, उसको कंबाइन किया जाता है, ठीक है। जो बिल्कुल उससे रिलेट होते हैं, बिल्कुल रिलेट होते हैं, उसमें रिलेट किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ को, ठीक है। इसमें हमारे जो उसी से रिलेट जो हैं मामलात जो होते हैं, उन्हीं को लेकर हम इकट्ठा चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे सोशल स्टडीज़ जो है मुताला पाकिस्तान, उसमें क्योंकि जो मुताला है पाकिस्तान का, उसमें तमाम चीज़ें ही आ जाती हैं। हम उसमें अपने आम जो तारीख़ी वाक़यात उनको भी देख रहे होते हैं, ठीक है। और जो क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारी बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन के खुदोखाल को भी देखना ज़रूरी है, जियोग्राफिकली, सोशियोलॉजिकली, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर interrelated to each other firmly. I think that these points will be clear now. Okay, thank you. I hope that these all points will be clear now. If you have a confusion, you can write in a comment box. Okay, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।